اسی شاعر نے کہا ہے کہ زندگی ناز نہ کر، تیرا بھروسہ کیا ہے، انسان ریت کی دیوار ہے، رکھا کیا ہے، اور جس کی دنیا میں ہلکا سا توجہ نہیں رہی، اس شخص سے پوچھو کہ دنیا کیا ہے۔ اور اپنی آرزو، اپنی تمنا تو یہی ہے کہ زندگی پیاری ہے جسے اسے جینا دے دے، زندگی پیاری ہے جسے اسے جینا دے دے، اور مجھے رہنے کے لیے فقط شہر مدینہ دے دے۔ آپ بھی چاہتے ہیں یا عاشق کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ پروردگار مانا کہ ہندوستان میں رہ رہے ہیں، مانا کہ مولا کوئی محبوب کے روضے سے دور ہے، لیکن پروردگار اگر تم نے ہمیں آنکھیں دی ہے، اگر ہمیں دیکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، تو پروردگار ہم یہی چاہتے ہیں۔ اگر غریب ہے تو وہ بھی راتوں میں کروٹیں بدلتا ہے، تو یہی کہتا ہے مولا، دل کی دھڑکنیں یہی کہہ رہی ہے کہ پروردگار اگر تیرے محبوب کے روضے کا دیدار نہ کیا تو نعتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پروردگار میری آرزو یہی ہے، میری تمنا یہی ہے، تیرے محبوب کے روضے کا دیدار کرنا۔ ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا، بڑی بڑی بلڈنگوں والے جو ہیں یہی رہ جاتے ہیں، پنی بیچنے والی خاتون مدینے چلی جاتی ہے، اور مدینے جانے کے بعد میں ہر عاشق کی تمنا یہی ہے کہ پروردگار اگر زندگی دی ہے تو محبوب کے قدموں میں گزرے گی۔ مولا اب میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا ہوں، میں نے جانوں پہ ظلم کیا ہے، مانا کہ میں گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، لیکن مولا تیرے محبوب کی امت میں ہوں۔ پروردگار اب میں یہی چاہتا ہوں، میری آرزو یہی ہے، میری تمنا یہی ہے، اگر زندگی ہو تو مدینے میں ہو، اگر موت ہو تیرے محبوب کا در ہو اور میرا سر ہو۔ تبھی تو علامہ حسن کہتے ہیں کہ اگر وقت اجل سر تیری چوکٹ پہ جھکا ہو، جتنی قضا ایک ہی سجدے میں عاشق یہی چاہتا ہے، عاشق یہی چاہتا ہے کہ مولا جس حبیب کے سجدے میں تو نے جان دی ہے، جس حبیب کے سجدے میں تو نے ایمان دیا ہے۔ لوگوں ذرا غور و فکر تو کرو کہ پروردگار تم سے محبت کتنی کرتا ہے۔ میرا رب بندے سے بڑا پیار فرماتا ہے، میرے رب نے یہ پیار تو فرمایا ہے کہ پہلے ہمیں انسان بنایا ہے، انسان بنانے کے بعد میں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دیا ہے۔ اس محبوب نے کلمہ پڑھا کے ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے، اور وہ دولت کیسی ہے؟ اے سنیو، جب میرے نبی نے کلمے کی تلقین کی تھی، جب میرے نبی نے کلمہ کے جب اسلام میں لوگ داخل ہو رہے تھے، کلمہ میرے نبی نے پڑھایا تھا۔ آج جو کلمہ لوگ پڑھ رہے ہیں، میرے نبی نے 1500 سال پہلے اپنی امت کو جو کلمہ سکھایا تھا، کلمہ پڑھانے کے بعد میں جو ایمان کی دولت سے نوازا تھا، اے سنیو، میرے نبی نے 1500 سال پہلے پڑھایا تھا۔ آج ایک نعرہ لگا تھا جلدی میں، سبھی نے ایک نعرہ بلند کیا تھا، یہی کہہ رہے تھے کہ تیرا میرا رشتہ کیا ہے، تیرا میرا رشتہ کیا؟ سب نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ ارے دانش رضا کہتا ہے تم 1500 سال کے بعد پڑھ رہے ہو، ہم نے برسوں یہی کہا ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں سنیو، تمہارا رشتہ جو ہے آج برادری کا نہیں ہے، تمہارا رشتہ جو ہے وہ کلمے کا رشتہ ہے۔ جس زنجیر میں کلمے کی حکمیں نبی نے 1500 سال پہلے جوڑا تھا، آج اسی رشتے کے خاطر جو ہے تم ایک دوسرے سے مل جاؤ، ایک دوسرے سے نفرتیں نہ کرو، بلکہ کلمے کی بنیاد پر ایک دوسرے کو نبی نے یہی کہا تھا، اے صحابہ یہ تمہارا بھائی ہے، اے صحابہ یہ تمہارا بھائی ہے۔ اب دنیا کے اندر تم کسی اور کے پیچھے مت چلے جانا، بلکہ یہ سمجھ لینا جس کا عقیدہ یہی ہو، جس کا عقیدہ یہ ہو جو احمد رضا نے دیا تھا کہ جب علم غیب مصطفیٰ پر جب انگلیاں اٹھائی تھی تو احمد رضا نے یہی تو عقیدہ لیا تھا کہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نیا ہو بھلا اور جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کرو درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، لگے اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ میرے نبی نے کلمے کا رشتہ جوڑنے کے بعد میرے نبی نے جب کلمہ پڑھایا ہے، اے سنیو، میرے نبی نے اس امت کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت ہوئی ہے۔ سنیو، میرے نبی نے کلمہ پڑھانے کے بعد میں اس امت سے
से प्यार कितना किया है, इस उम्मत से प्यार कितना किया है। ऐ लोगों, जब मेरा नबी दुनिया में तशरीफ लाया है, लाने के बाद में सबसे पहले सर को सजदे में रखने के बाद में रब की बारगाह में यही तो कहा था, अल्लाहुम्मा रब्बि हब्ली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बि हब्ली उम्मती। ऐ परवरदिगार, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जब नबी ने दुनिया में आने के बाद में इस उम्मत को याद किया है, मेरे नबी जानते थे कि मेरी उम्मत भी है और मेरी उम्मत में गुनाहगार भी होंगे, सियाकार भी होंगे, बदकार भी होंगे, खताकार भी होंगे। परवरदिगार, मेरी उम्मत में गुनाहगार जब क़यामत के दिन आएगा, परवरदिगार जब सूरज सवादेसे पर होगा, जब दिमाग आंधी की तरह खोलते होंगे, ऐसे आलम में नफसी नफसी का आलम होगा, न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न माँ बेटी की होगी, न बेटी माँ की होगी, अजीज और तारीफ छोड़ के चले जाएंगे। परवरदिगार, मेरा उम्मती जो है गुनाहगार सियाकार है, तेरे कहानी जब्बारी के सामने कैसे जवाब देगा। परवरदिगार, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। आवाज आती है, महबूब परेशान मत हो, दिल घोड़ा मत कर, आजाने दो उस दिन को, हुकूमत भी तेरी होगी, हुकूमत भी तेरी होगी, फैसला तेरा होगा, मैं सबको बख्शता चला जाऊंगा। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाने के बाद में जब ईमान की दौलत से नवाजा है, हमको निभाया है, उसी ईमान को बचाने के लिए मेरे नबी ने फरमाया, लोगों तुम अपने आप को तन्हा मत समझना, जब बात आ जाए तुम मेरे अबू बकर को देख लेना, मेरे अबू बकर को देख लेना, मेरा अबू बकर को चलने को देख लेना, जिसका चलना लाजवाब है, जिसकी गुफ्तार लाजवाब है। मेरे उमर को देख लेना। जब बात ईमान की आ जाए तो ईमान का सौदा नहीं करना है, कभी अपने आप को ईमान के खातिर पैसे की लालच में अपने ईमान का सौदा मत कर देना। तुम ये देख लेना कि तुम्हारे नबी ने इस कलमे के खातिर ताइफ की बस्तियों में लोगों ने कहीं पत्थर मारे हैं, कहीं नबी के रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं, लेकिन फिर भी हाथ उठा के दुआ की है, बोले ये हिदायत दे दे। सुन लियो, आज उसी कलमे का वास्ता है, आज उसी कलमे की तुम्हें कसम दी जाती है परवरदिगार की बारगाह में। आज बिरादरी की हाथ को उठा के रखो, आज तुम्हें जो है उस कलमे के नाम पर एक होकर, कलमे के नाम पर एक प्लेटफॉर्म पे आने के बाद में यही कहोगे कि कलमे के नाम पर कि तेरा मेरा रिश्ता क्या है, तो यही कहना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर ज़मीन है तो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है, उसको सीने से लगा ले, ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। अकीदा देख लेना, जो अकीदा परियों के रजा ने दिया है, जो उन्हें नर्क के तालुक से था और कोई पाएगा तुमसे निहा हो वाला, जब ना खुदा ही छुपा तुमको करोड़ों दो और तहमीद कर दूं। जब ईमान बचाने की बात आई है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सामने आ गए हैं, जब ईमान बचाने की बात आ गई है, उमर फारूक आज़म सामने आ गए हैं, जब ईमान बचाने की बात आ गई है, उस्मान गनी सामने आ गए हैं, जब ईमान बचाने की बात आई है, मौला अली सामने आ गए हैं, और करीब कर दो जब ईमान बचाने की बात में आ गई है, इमाम आज़म अबू हनीफा सामने आ गए हैं, जब ईमान बचाने की बात आ गई है, तो हमारे सामने इमाम शाफ़िई बन के आ गए हैं, वो ईमान बचाने की बात आई है, इमाम मालिक बिन हम्बल बन के आ गए हैं, और करीब कर दो जब ईमान की बात आ गई है, तो ईमान बचाने के लिए बगदाद में अब्दुल कादिर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चिल्ला देना मेरे नबी का। अभी दुनिया में नहीं आए हैं, चर्चा पहले से हो रहा है। अभी दुनिया में नहीं आए हैं, चर्चा पहले से हो रहा है। मौला अली ने अपना जुब्बा जब दिया था, आका इमाम हुसैन से कहा था, बेटा ये जुब्बा अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दे देना। उनसे कहना ये जुब्बा अपने बेटे को दे दे, उनसे कहना ये जुब्बा अपने बेटे को दे दे, एक दूसरे को वसीयत करके चले जाना। आका इमाम हुसैन ने कहा था, पापा ये कब तक चलता रहेगा, कब तक इस जुब्बे को चलाया जाएगा? कहा था, बेटा जब तक बगदाद की सरजमीन पर मेरा बेटा अब्दुल कादिर ना आ जाए तब तक जुब्बा चलाते रहना। कि मेरे सरकार गौसे आज़म की शान है। अभी आए नहीं है, धूम पहले से मच रही है, आए
नहीं है, तुम पहले समझ रही है। आओ जल्दी से कुछ बातें विलादत लेकर के बात को खत्म कर लो। जब ईमान की बात आई थी, सरकार सैयद गौसे आजम जो है दुनिया के अंदर जब तशरीफ लेके आए हैं, कस्बा जिलान के अंदर है, जिस तारीख में आपकी विलादत हुई है, आपके बाबा हज़रत सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त फरमाते हैं, जिस तारीख में मेरा बेटा दुनिया में आने वाला था, जिस तारीख में मेरे बेटे की विलादत होने वाली है, उस तारीख में मेरे बाप में जो है शमशुल दुहा, कदरुल दुजा, खैरुल रसूल, खैरुल बरा तशरीफ लेके आ गए हैं। आने के बाद में कहा था, ए अबू सालेह तुझे मुबारक हो, ए अबू सालेह तुझे मुबारक हो, जो बच्चा तेरे घर के अंदर आ रहा है वो आम बच्चा नहीं है। ए अबू सालेह तुझे मुबारक हो, जो बच्चा आ रहा है वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा, मैं उससे प्यार करता हूँ और अल्लाह भी उससे प्यार करता है। ए अबू सालेह तुझे मुबारक हो, ए अबू सालेह तुझे मुबारक हो, वो आम बच्चा नहीं है, उससे अल्लाह भी प्यार करता है और मैं भी प्यार करता हूँ। ए अबू सालेह बस इतना समझ लीजिएगा, जिस तरीके से अल्लाह ने मुझे तमाम नबियों का सरदार बना के भेजा है, बस इसी तरीके से अल्लाह ने अब्दुल कादिर को तमाम वलियों का सरदार बना के भेजा है। सरकार से तजीबों से आज़म दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। आपकी वालिदा माजिदा फरमाती है, फातिमा उम्मुल खैर फरमाती है, जिस तरीके से माओ को बच्चे की पैदाइश में तकलीफ होती है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है। अपने वक्त का अवतार आ रहा है तो मुझे मुबारकबाद दे रहा है, अपने वक्त का कुतुब आ रहा है मुझे मुबारकबाद दे रहा है और यही कह रहा है, ये फातिमा उम्मुल खैर तुम्हें मुबारक हो, ये फातिमा उम्मुल खैर तुम्हें मुबारक हो, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, जो वलियों का सरदार बन के आ रहा है, ये अबू सालेह तुम्हें मुबारक हो। जब सरकार सैयदी गौसे आज़म दुनिया में तशरीफ लेके आए हैं, लोगों दुनिया में आने के बाद में जब दुनिया में तशरीफ लेके आए हैं, तारीख में आता है जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो आपके कांधों के बीच में नबी कौनैन के कदम का निशान मौजूद था, ये आपकी विलादत की मोहर थी। अल्लाह ने आपके कांधे पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब बंदे अब्दुल कादिर को जब दुनिया में भेजा है तो अपने महबूब के परतब भेजा है। और जो नबी के दौर में जो उसके बाद में कोई वली आता है तो फैज नबी से मिलता है, और नबी का फैज कैसा है, ये तो नबी का घराना है, ये नबी का लाडला है। जब बाद बेटे भी आ जाए तो लाजवाब बेटा दिख रहा है। कौन है अब्दुल कादिर? जब दुनिया में आए हैं, जब कस्बा जिलान के अंदर आपकी विलादत हुई है, लोगों जिस तारीख में दुनिया में आए हैं, जिस तारीख में कस्बा जिलान के अंदर आए हैं, जितने बच्चे उस तारीख में पैदा हुए हैं, जितने बच्चों को माओ ने चला है, जितने बच्चों की पैदाइश हुई है, वो सब के सब बेटे पैदा हुए हैं। ये सदका है अब्दुल कादिर का और अल्लाह ने सबको वली बना दिया है। ये सदका है गौसे आज़म का और मेरे रब का फरमान है, ऐ लोगों जो अब्दुल कादिर से बुग़्ज़ रखेगा, नफरत करेगा वो गुमराह हो जाएगा, और जो अब्दुल कादिर से मोहब्बत करेगा और मोहब्बत करेगा वो दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी। कौन है अब्दुल कादिर? नबी आने के बाद में जिंदगी के अय्याम गुजार रहे हैं। सरकार सैयदी गौसे आज़म है, जिंदगी के अय्याम करते रहे, जिंदगी के अय्याम गुजारते जा रहे हैं। जब जिंदगी के अय्याम गुजारते रहे एक वक्त वो भी आया है जब आपके वालिद गिरामी वक़ार का इंतकाल हो जाता है। जब इंतकाल हो जाता है अब आप जो है आपकी हिफाजत आपके नाना हज़रत अब्दुल्ला सोमई कर रहे हैं, और उसके बाद में नाना के दर पे है, नाना के यहाँ पर है, वही तालीम हासिल कर रहे हैं, और वही नाना के पास में है, वही हिफाजत नाना कर रहे हैं, ताकि बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। आप फरमाते हैं एक दिन ऐसा भी आया है कि बच्चों को साथ में गली में गलियों में खेल रहा था, बच्चों ने एक बैल की पूंछ को पकड़ा था, बच्चे खेल रहे थे। जब मैं उसके करीब गया हो और जब मैंने पकड़ना चाहा, उसने अपनी गर्दन को तोड़ के कहा था, अब्दुल कादिर तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया है, अब्दुल कादिर तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया है। आवाज तो मैं सुनता था लेकिन आवाज देने वाला दिखाई नहीं देता था। मैं घबरा के माँ की गोद में चला जाता था, माँ के आगोश में चला जाता था। लेकिन जब जिंदगी के अय्याम बढ़ते गए, जब नाना ने आपकी हिफाजत की है, एक दिन वो भी आया है आप नाना के दर पे बाहर खेल रही है, एक खातून अपने गोद में बच्चे को लेके आई है, और बच्चे को लेने के बाद में ज़ारों कतार हो रही है। आने के बाद में कहा था बेटा
मुझे जरा बता दो सही, इस हुजरे में जो है एक बाबा रहते हैं, मुझे उनसे मुलाकात करनी है। कहा किस काम के लिए आए हो? उन्होंने उस खातून ने कहा था कि मैंने सुना है कोई बच्चा बीमार होता है, ये उसको दम कर देते हैं, वो शिफायाब हो जाता है। बेटा मैं भी यही सोच के आई हूँ, मेरा इकलौता बेटा है, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, और मेरे लाल मैं अपनी जिंदगी इसी बच्चे के सहारे गुजार रही हूँ, मेरे लगते जिगर के साथ में अपनी जिंदगी का याम गुजार रही हूँ। और मेरी यही सोच है जब मेरा बेटा जवान होगा, मेरे बुढ़ापे का सरमाया बनेगा, मेरे लाल मैं अपने बेटे को रास्ते में लेके आ रही थी, मेरा बेटा ज़ारों कतार रो रहा था, लेकिन अब आने के बाद में मेरे बेटे ने रोना बंद कर दिया है। मुझे जल्दी से बता दो बाबा से मुलाकात करना है। जब हुजरे में गई है, क्या देखा हज़रत अब्दुल्ला सोमई हुजरे के अंदर तशरीफ फरमा है। जाने के बाद खातून ने कहा कि बाबा मेरा इकलौता बेटा है, तबीयत खराब हो गई थी, सफर लंबा था, मैं सफर से आ रही थी, मेरा बेटा रास्ते में रोता हुआ आया है, रास्ते में बिलखता रहा है। बाबा मेरा इकलौता लाल है और मैं अपने बेटे के लिए आई हूँ, बाबा मेरे बेटे को देखो क्या हो गया है। हज़रत अब्दुल्ला सोमई ने अपनी आंखों को बंद किया है। जब मुराकबा करने के बाद में जब लौहे महफूज में नजर डाली है, डालने के बाद में कहा था ऐ खातून तेरे बच्चे का इंतकाल हो गया है, तेरा बच्चा मर गया है। जब इतना सुना था अब खातून सरों कतार रोने लगी है और यही कह रही थी बाबा मेरे इकलौता लाल था, इसी के सहारे जिंदगी के याम गुजार रही थी। पूछो उन माओं से जिनका इकलौता लाल हो, अगर उसे कुछ हो जाए तो मां तड़पने लगती है, अगर बेटे की तबीयत खराब हो पूरी रात मां जाग के गुजार देती है। आज जो है उनसे कादरी में आने वालों, आज इस बात को अपने ज़हन नशीन कर लेना, अपनी माँ को तकलीफ मत देना, अपनी माँ को अपनी बुनियाद पर कभी परेशान मत होने देना, अपनी माँ को सवाल दराज कभी मत करना, अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात कभी मत करना। ये वो माँ है लोगों, ये पैसों से नहीं मिलती है बल्कि नसीबों से मिला करती है। इसकी कदर करना, इसकी खिदमतें करना। वो खातून ज़रूर कतार रो के कह रही है वो बेटा मैं जब लेके आ रही थी मेरा बच्चा ज़रूर कतार रो रहा था, और जब हुजरे से निकल के आई है सरकार से गिरती गौसी आज़म ने जब रोते हुए देखा है कहने लगे हैं खातून जरा बता तो सही कि चीज ने तुझे रुला दिया है, तेरी रोने की वजह क्या है, तू ज़रूर कतार क्यों रो रही है। जब इतना कहा था उस खातून ने कहा बेटा अभी तुम छोटे हो, अभी तुम कम सिंह हो, मैं किस तरीके से तुम्हें हाल दिल सुना हो। बेटा मैं आ रही थी रास्ते में, मेरे बेटा जो छोटे तबीयत खराब थी मेरे बेटे की, और परसों पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। बेटा मैं जिंदगी का याम इसलिए गुजार रही थी कि मेरा बेटा बुढ़ापे का सरमाया बनेगा, मेरा बेटा जो है बुढ़ापे में मेरी खिदमत करेगा। मैं सोच रही थी कि अपने बेटा जब जवान होगा चांद सी दुल्हन घर के अंदर लेके आऊंगी। बेटा मेरी आरज़ू यही थी, मेरी तमन्ना यही थी, इसी आरज़ू में जिंदगी का याम गुजार रही थी। लेकिन बेटा जब मैं बाबा के पास गई हूँ, बाबा ने तो देख के कह दिया कि बेटे का इंतकाल हो गया है। बेटा बता तो सही अब बेवा की जिंदगी कैसी होती है, बेवा अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी। यार बेवा के ताल्लुक से बात में कह दो, मेरी दुनिया जो है बड़ी बेवफा है। अगर कोई बेवा खातून किसी के दर पे चली जाती है, ये तो ऐसी बेवफा दुनिया है ये लुकमा तब तक ना खिलाती जब तक कपड़े नहीं उतरवा लेती है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, किसी के लुकमा खिलाने से पहले उसको जलील और रुसवा कर देती है। यार बेवा की जिंदगी भी अजीब होती है, कभी तो दर दर भीख मांग के जिंदगी काटती है, कभी तो जो है बेवा की जिंदगी होती है घरों में काम करके जिंदगी गुजारती है, अपने बच्चे की परवरिश करती है। वो खातून यही कह रही थी। सरकार से यदि गौसे आज़म ने अपनी आंखों को बंद किया है, बंद करने के बाद जब दोबारा खोला है, खोलने के बाद में कहा था ऐ खातून अब रोने की जरूरत नहीं है, तू कहती है तेरे बच्चे का इंतकाल हो गया है, जरा देख तो सही कोट में ये तो जिंदा है जिंदा। जब ये अल्फाज ज़बान से निकले हैं, जिस बच्चे की रूह जो है कब से उन शरीर से परवाज कर गई थी, अब वो बच्चे के दिल में आने के बाद में अब बच्चा रोना शुरू कर देता है, अब चीखना शुरू कर देता है। जब आवाज जो है हज़रत अब्दुल्ला सोमई के कानों में गई है, हुजरे से निकल के बाहर आ गए हैं, आने के बाद कभी खातून को देख रहे हैं, कभी उस बच्चे को देख रहे हैं, कभी अपने नवासे अब्दुल कादिर को देख रहे हैं, और देखने के बाद में छड़ी उठाई है, और छड़ी उठाने के बाद में अब्दुल कादिर के पीछे पीछे चल लगे हैं। सरकार सैयदी गौसे आज़म आगे आगे चल लगे हैं। गन्नों से गुजरने के बाद में आपका गुजर कब्रिस्तान से हुआ है, और कब्रिस्तान में जैसे गुजर हुआ है आपने कहा था ये कब्रिस्तान के मुर्दों तुम्हें पता नहीं है आज नाना पीछे पीछे आ रहे हैं, अब
اب قبروں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ باہر نکل آؤ. جب اتنا کہا تھا 200 مردے قبروں سے نکل کر باہر آ گئے ہیں اور ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے ہیں اور ٹیلے پہ کھڑے ہو کے سرکار سیدی غوث اعظم مسکرا رہے ہیں. جب یہ دیکھا ہے حضرت عبداللہ سومری نے کبھی تو نواسے کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے کے بعد میں یہی کہتے ہیں بیٹا عبدالقادر جس میں تم راضی ہو اسی میں تمہارے نانا بھی راضی ہے. اسی نے یعقوب کہا ہے جو گرتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں علی کے لال غریبوں کو پال لیتے ہیں. اور میرے اللہ نے غوث اعظم کو وہ مرتبہ دیا جو قبر سے مردے کو زندہ نکالا. سبحان اللہ بابا سبحان اللہ. واہ بڑا عمدہ بیان ماشاءاللہ. میرے غوث اعظم کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا جو قبر سے مردے کو زندہ نکال لیتے ہیں. قادریوں اپنے قسمتوں پہ ناز کرو. تمہیں دامن ملا تو بغداد والے کا دامن ملا ہے. تمہیں پیر ملا تو ولیوں کا سردار ملا ہے. اور میرے رضا نے تو پہلے ہی کہہ دیا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری قدرت علماء کے واسطے. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے لوگوں اعلیٰ حضرت کی پیار دیکھو محبت دیکھو سرکار سیدی غوث اعظم سے. آپ فرماتے تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت. یعنی سرکار سیدی غوث اعظم کا در ہو اور اس میں رہنے والا جو کتا ہے مجھے اس سے بھی محبت ہے. فرماتے تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی رہے ڈورا تیرا اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. قادریوں تم کہتے ہو ہم نے سرکار سیدی غوث اعظم کے دامن کو پکڑا ہے. آج میں ایک بات کہہ دوں تم کہتے ہو ہم قادری ہیں. یار میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر قادری ہونے کا دم بھرتے ہو تو کردار بھی قادری ہونا چاہیے. اگر قادری ہونے کا دم بھرتے ہو تو طور و طریقہ بھی قادری ہونے والا چاہیے. اگر اپنے آپ کو قادری کہتے ہو تو طریقہ قادریت پہ تمہیں قائم ہونا چاہیے. آج ماؤں سے میں اتنا کروں گا اپنے بچے کو جو ہے تم کسی فلمی اسٹار والے کا فیل مت بنانا. اگر غلام بنانا ہے تو قادری غلام بنا کر ان کے گلے میں پٹا قادری ڈال دینا. جب قادری ہو جائیں گے تو یہی کہیں گے کہ قادری ہونے کا پٹا جب گردن میں ڈالیں گے تو دنیا کچھ بھی کہے یہ قادری جو ہے یہ قادریت میں آنے کے بعد میں پوری زندگی اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے گزار دے گا. کبھی شریعت کے خلاف کام نہیں. سبحان اللہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم اس لیے دینا لوگوں اگر تم نے دین کی تعلیم نہیں دی تو دنیا کی تعلیم نہ دی تو سمجھ لینا جبھی مزدوری کی زندگی گزاری جائے. تم نے تو اپنی کاج کی لیکن ان بچوں کو تمہیں غلام بنا کے بچانا. ان بچوں کو ہاتھوں میں قلم کی طاقت دے دینا. ان بچوں کو دین اور دنیا دونوں دینا. یہ کبھی لائن میں کھڑے نہیں ہوں گے تو بات حق کی آ جائے گی. یہ قلم کی طاقت کی بنیاد پہ اپنا حق لیتے دکھائیں گے. سبحان اللہ. اس لیے کبھی بھی انہیں دین سے دور مت رکھنا. انہیں دین کی تعلیم ضرور دینا. اور دنیا کے اندر تم جب چلے جاؤ گے انہیں حافظ قرآن بنا کے جاؤ گے عالم دین بنا کے جاؤ گے یہی بچے تمہارے لیے ذریعہ نجات بن جائے. بس اسی لیے اپنے بچوں کو سرکار سیدی غوث اعظم کی محبت سرکار سیدی غوث اعظم کی زندگی کے واقعات اور سرکار سیدی غوث اعظم نے جس طریقے سے ماں کے حکم پہ عمل کیا ماں سے محبت کی جب انہیں بتاؤ گے کہ تمہاری بھی عزت کریں گے اور تمہارے گھروں میں بڑوں کی بھی عزت کریں گے. بچوں سے شفقت سے پیش آئے. میں نے جو کچھ بیان کیا اس میں جو خامیاں غلطی غلطی میں دری ہو گئی مولا اس کو معاف فرمائے. میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من ذنبی باتوں آپ لوگ کی کلمہ شریف قبول کیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام.